Hello everyone. Today we are going to talk about law of demand. This law states that other things remaining constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and on price of the commodity. So this law states that there exists a negative relationship between quantity demanded and price of the commodity. If price of the commodity X is denoted by Px and demand of the commodity is represented by Dx. If price falls, the demand for the particular commodity will increase. On the other hand, if price of commodity X increases, the demand for commodity X will decrease. So there is inverse relation. When one variable is going down and other variable is going up, then these two variables are inversely related. One more thing is here, other thing remaining constant. What is the meaning of this? In the previous section, we have talked about demand function. Demand for commodity X is function of price of that commodity, price of related commodity, income of the consumer, taste and preferences. So here it was assumed that we are assuming that price of related commodity, income, taste and preferences do not change. So these are our other thing remaining constant. If P, R, Y and T do not change, the only changing variable is price of that commodity. So what will be the effect of change in price on demand? So if price will decrease, the demand will increase. If price increases, demand decreases. So this is the law of demand. Now this law is based on some assumptions. And what are those assumptions? Assumptions are very simple of this law. First assumption is the price of related commodities, the prices of related commodities do not change. Second, income of consumer there is no change in income of the consumer. Third one is taste and preference
of the consumer remains constant. So what we are assuming to remain constant are the assumptions of the law. Assumptions means if these things will be violated, the law of demand will not operate. So we are assuming price of related commodity, income, taste and preferences are not changing. Now we will explain the law of demand with an example. Here price of the commodity and here demand for that commodity or quantity demanded. If price is 10 rupees, the demand is 100 units. If price decreases to 9 rupees, the demand will increase to 150 units. If price of commodity X increases to 8 rupees, it decreases to commodity increases to 200 rupees. If price falls to 7 rupees, the demand for commodity increases to 50 rupees. We will represent this table in a diagram. At x-axis we are showing units of commodity, units of quantity demanded, or simply quantity demanded. Y-axis representing price, one, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantity demanded 50, 100, 150, 200, 250. When the price of commodity is 10 rupees, the demand for the same is 100. When price falls to 9 rupees, demand increases to 150. If price fall to the 8 rupees, then demand increases to 200 units. If price again fall to 7 rupees, the demand for commodity is 250 units. By joining this line, we will get the demand curve. This is our demand curve. We can also connect these lines here. When price is 10 rupees, corresponding demand is 100 units. At price 9 rupees, corresponding demand is 150.
for 8 200, 7 250. Now we will explain this law graphically. Graphical explanation. Y-axis, x-axis. X-axis represent quantity demanded, y-axis represent price of the commodity. DD curve is demand curve. This y-axis representing price, here quantity demanded, x-axis. So this curve shows the negative relation between price and commodity demanded. Price decreases, quantity increases, demand increases. For example, let's say if the price of commodity is OP, initially price is OP, the demand is OQ, quantity demanded equal to OQ. If price decreases to OP, decreases from OP to OP1, अगर प्राइस डिक्रीज कर जाती है OP से OP1 हो जाती है तो जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगी, OQ से OQ1 हो जाएगी। तो जो अब प्राइस हो गई है दैट इज OP1, क्वांटिटी डिमांडेड OQ1। अब अगर कोई कहे चेंज इन प्राइस कितना हुआ, चेंज इन प्राइस तो क्या हो जाएगा आपका OP माइनस OP1। जो बड़ी वाली प्राइस होगी, जो ज़्यादा होगी, उससे कम वाले प्राइस को हम डिफरेंस कर देंगे। तो जो बड़ी वाली प्राइस है वो क्या थी, OP थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्राइस OP। कम वाली प्राइस क्या है, OP1। यानी इस OP, इस पूरे डिस्टेंस में से इस OP1 डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इतना डिस्टेंस बस बचेगा, P1P। तो यही P1P क्या है, चेंज इन प्राइस है। तो प्राइस क्या है, P1, ये क्या हुआ है आपका, प्राइस डिक्रीज किया हुआ है, इसलिए नेगेटिव साइन। चेंज इन प्राइस को हम डेल्टा P से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा होगा ओ Q1, बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करेंगे, ओ Q1 माइनस ओ क्यू। तो ये जो पहले हमारी क्वांटिटी थी ओ क्यू थी, जब प्राइस डिक्रीज हुई तो हमारी क्वांटिटी बढ़ के ओ Q1 हो गई। तो चेंज कितने का हुआ है? दिस इज द चेंज Q1, ये इंक्रीज हुआ है। तो ये हो गया आपका Q1, ये है आपका डेल्टा Q, ये इंक्रीज हुआ है। एक होता है स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। तो ये जो डिमांड कर्व है ये एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो एंगल ही हमारा स्लोप कहलाता है। तो इसको अगर हम ऐसे मिला देंगे तो ये इसका एंगल होगा, स्लोप होगा। जैसे आपके पास एक लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है, पटरा है, ये आपकी फ्लोर है। तो ये इस फ्लोर से कितने एंगल पे, कितने एंगल का, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, यही इसका स्लोप होता है। तो अगर ये स्लोप कम होगा, जैसे ये है, इस पे एक बॉल रखेंगे तो ये बॉल गिरेगी। तो अगर इसका स्लोप ज़्यादा होगा, जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके से हो गया, स्लोप ज़्यादा है, तो इस पे बॉल आप रखेंगे तो ये बॉल काफ़ी तेज़ी से गिर जाएगी। अगर इसका स्लोप कम है, जैसे मान लेते हैं कि हमने ऐसे रख दिया इस तरीके से, ये स्लोप कम है, तो ये बॉल धीमे धीमे गिरेगी, जबकि ये बॉल काफ़ी तेज़ी से गिर जाएगी। तो यही स्लोप होता है। तो ये जो डिमांड कर्व है इसका स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जब प्राइस में डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ जा रही है। तो प्राइस और डिमांड दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल में डिक्रीज होने पे दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो जाए तो रिलेशन आपका इन्वर्स होगा और जो कर्व बनेगा वो नेगेटिव स्लोप का बनेगा। तो ये जो कर्व है आपका डीसी कर्व, ये जो डीसी कर्व है आपका, ये डीडी कर्व को बोलते हैं डिमांड कर्व। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या लेफ्ट से राइट की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव कैसे है इसी को हम बता रहे हैं। तो जब भी स्लोप निकालना हो, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो जो चेंज इन प्राइस है वो PP1 है और चेंज इन क्वांटिटी आपका QQ1 है। तो यही स्लोप है, यानी ये वाली दूरी, ये जो इतना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो ये डिफरेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यही हमारा स्लोप बताता है। स्लोप क्या हो गया आपका? PP1 अपॉन QQ1। यहाँ पर भी देख लेते हैं, PP1 क्या है आपका? नेगेटिव है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन प्राइस क्या है आपका? PP1 नेगेटिव है, नेगेटिव साइन। चेंज इन क्वांटिटी क्या हो गया? QQ1। तो यही आपका स्लोप होता है। स्लोप का फार्मूला क्या हो जाता है ये आपको याद करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, यही इसका स्लोप है, यानी चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी।
अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ। टू द लॉ, एक्सेप्शंस और एजम्पशंस में डिफरेंस होता है। एजम्पशंस जब हमारे फुलफिल होंगे तभी कोई लॉ ऑपरेट करेगा। इस लॉ में हमने एज्यूम किया था प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होता हो, में कोई भी चेंजेस ना हो, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच जो रिलेशन है वो नेगेटिव होगा। अगर ये एजम्पशंस आपके वायलेट ना हो, जैसे हमारे एजम्पशंस था फंक्शन पी एक्स पी आर वाई टी, ये एजम्पशंस हमारे वायलेट ना हो, फिर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम ना करे, तो जो होगा वो कुछ केसेस में हो सकता है। वो क्या केसेस हैं? वही हमारे एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब होता है certain goods which command over social distinction। मतलब कुछ ऐसी कमोडिटीज होती हैं जो सोशल डिस्टिंक्शन, अपने आप को समाज में अलग दिखाती हैं। जैसे रेयर पेंटिंग हो गई, रेयर पेंटिंग सभी लोगों के पास नहीं है, तो जब ये पेंटिंग रेयर है इसलिए इसकी प्राइस क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। अगर वो पेंटिंग रेयर नहीं है तो वो पेंटिंग सभी के पास हो सकती है, उसकी कोई प्राइस नहीं रहेगी। तो जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? सोशल डिस्टिंक्शन है। दूसरा इसका फीचर हो सकता है कि इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं, प्राइसेस आर हाई। तो जो रिच कम्युनिटी है सोसाइटी का, वो इन्हें अपने पास अपने शौक के लिए रखता है और वो अपने आप को बाकी लोगों से अलग दिखाता है। अगर इनकी प्राइसेस डिक्रीज हो जाएं, मान लेते हैं ये एक्स, इट इज कमोडिटी ऑफ डिस्टिंक्शन और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है ये। अगर इसकी प्राइस डिक्रीज करती है तो इसकी डिमांड भी क्या होगी? सॉरी, ये एक्स कमोडिटी जो है ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है। अगर इसकी प्राइस डिक्रीज करेगी तो इसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये लॉ ऑफ डिमांड इस केस में वायलेट हो रहा है, वायलेशन हो जा रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? अगर प्राइस हमारी डिक्रीज करती है तो डिमांड इंक्रीज करेगी, लेकिन आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के केस में अगर प्राइस डिक्रीज करेगी तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। दूसरा है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता है। गिवन गुड्स, रॉबर्ट टी गिफेन, इन्होंने बतलाया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ के लोगों की इनकम बहुत कम होती है, यानी बहुत ज़्यादा लोग पुअर होते हैं। तो जो पुअर हैं उनकी इनकम कम है, इनकी इनकम कम होने के कारण ये लोग
जो सीरियल्स अनाज हैं, सीरियल्स हैं, ये इंफीरियर क्वालिटी की सीरियल्स का कंजम्पशन करते हैं। जैसे आपका मेज हो गया, दे कांट अफोर्ड सुपीरियर क्वालिटी और नॉर्मल क्वालिटी ऑफ सीरियल्स। जैसे वीट, दे कांट अफोर्ड वीट। तो इनके इनकम का एक मेजर पोर्शन इस जो इंफीरियर क्वालिटी का अनाज है उसको कंज्यूम करने में जाता है। तो अगर इसकी प्राइस डिक्रीज कर जाती है, इंफीरियर क्वालिटी का जो कमोडिटी था इसकी प्राइस अगर डिक्रीज कर गई तो क्या होगा? जो पुअर्स हैं उनकी इनकम इनडायरेक्टली इंक्रीज हो जाती है। जब इनकी इनकम इनडायरेक्टली इंक्रीज हो गई, यानी अब ये लोग इस खराब क्वालिटी के, इंफीरियर क्वालिटी के फूड ग्रेन को कम कंज्यूम करेंगे और उसके बदले में वीट का कंजम्पशन करने लगेंगे या एक सुपीरियर फूड ग्रेन का इस्तेमाल करेंगे। कंज्यूम मोर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी गुड, सुपीरियर फूड ग्रेन। तो यहाँ पे जो इन्फीरियर फूड ग्रेन था उसका प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड कम हो गई। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं कर रहा है। तीसरा है, अगर कंज्यूमर ये एज्यूम करे कि जिस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो इस केस में भी क्या होगा? प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो अज्यूम करके ये चल रहा है कि प्राइस तभी कम होगी जब उसकी क्वालिटी में डिक्रीज हुआ हो। तो कुछ कंज्यूमर ऐसे भी होते हैं सोसाइटी में जो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उनके दिमाग में ये बात होती है कि अगर प्राइस डिक्रीज हुआ होगा तो क्वालिटी भी डिक्रीज की होगी, इसलिए वो ख़राब क्वालिटी के गुड्स का कंजम्पशन नहीं करते हैं। तो उस केस में प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड आपकी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज हो जाएगी। तो थर्ड केस है आपका व्हेन कंज्यूमर जज क्वालिटी of the commodity by its price।